So, brothers and sisters, today I'm going to speak on our fellowship with God. और भाई और बहनों, आज जिस विषय के बारे में मैं साझा करने वाला हूं वो है परमेश्वर के साथ हमारी संगति। So, we know about fellowship with one another, हम जानते हैं कि एक दूसरे के साथ संगति का क्या मतलब है, but we are talking about our fellowship with God. पर आज हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ हमारी संगति। Fellowship is a very, we know about friendship. Friendship is something close, but fellowship is much more closer. अब हम सब जानते हैं कि मित्रता क्या होती है, पर संगति मित्रता से भी घनिष्ठ या नजदीकी होती है। And we, as children of God, can know our God. और हम जो परमेश्वर की संतान है, हम अपने प्रभु को जान सकते हैं, अपने परमेश्वर को जान सकते हैं। Christianity, the true Christian life, is a life where we are in knowledge of God and in communion with God. और मसीहत या सच्चा मसीही जीवन वो है जहां हमें परमेश्वर का ज्ञान भी है और परमेश्वर के संबंध या संपर्क में हम हैं। It is different from the other religions. ये अन्य धर्मों से अलग है। Here we have got a connection with the living God. यहाँ एक जीवित परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध या जुड़ाव है। Brothers and sisters, if we just don't have that and if we just come without a connection with God, then we are also having religion. और भाई और बहनों, अगर हमारे पास यही नहीं है और हम ऐसे ही यहाँ कुछ काम करने आते हैं बिना उस संबंध के, फिर हमारे पास भी केवल धर्म है। So today we are going to speak about that connection with God, which is fellowship with God. और आज हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के साथ उस संबंध के, जो है परमेश्वर के साथ संगति। Okay? So that's very, very important. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Now, it says about the new covenant. अब नई वाचा के बारे में ऐसे लिखा है। Anybody knows what is the new covenant? क्या आप में से कोई जानता है नई वाचा क्या है? We should all know. We are all in the new covenant, so we should know what is the new covenant. हम सब नई वाचा के अंदर हैं, हमें जानना है नई वाचा का क्या मतलब है। So it's found in Hebrews chapter 8. वो इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय में पाया जाता है। So today that is not my topic, but from Hebrews chapter 8 verses 10 to 12 is the new covenant. अब आज ये मेरा विषय तो नहीं है, पर इब्रानियों 8:10 से 12 में हम नई वाचा को पाते हैं। So in Hebrews chapter 8 verse 11, a part of the new covenant is, अब इब्रानियों 8 का जो 11 है वो नई वाचा का एक भाग है। okay, it says, and they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brother, saying, know the Lord, for all will know me, from the least to the greatest of them. और वहां लिखा है, हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। So this is what God is telling about our relationship, that nobody has to teach us to know Jesus or to know God. अब परमेश्वर यहाँ हमारे रिश्ते के बारे में हमें बता रहा है कि किसी और को हमें बताने की जरूरत नहीं, तुम परमेश्वर को ऐसे जानो या परमेश्वर को जानो। Everyone shall know, from the least to the greatest. हर कोई जानेगा, छोटे से लेकर बड़े तक। Okay? Any small child here? क्या कोई छोटा बच्चा यहाँ है क्या? You can know the Lord. आप परमेश्वर को जान सकते हो। The oldest one of us can know the Lord. हम में से जो सबसे उम्र में बड़ा है वो प्रभु को जान सकता है। It's a wonderful thing. ये अद्भुत चीज है। To know God is a wonderful thing. प्रभु को जानना ये एक अद्भुत चीज है। Okay? So we read in 1 John chapter 2 हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में verse 13. उसका 13 वचन। 1 John 2 verse 13 says, पहला यूहन्ना 2:13 कहता है, I am writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome this evil one. I am writing to you, children, because you know the Father. हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से उसे तुम जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। So this is what the word of God says. I am writing to you, fathers. Many of us are fathers. और बाइबल यही कहता है, मैं तुम पिताओं को लिख रहा हूं, हम में से कई पिता है। That you know the Father. और वो कहता है कि तुम पिता को जानते हो। And you are writing to your children because you know the Father. और फिर वो कहता है, मैं जवानों को या बच्चों को लिखता हूं, तुम पिता को जानते हो। So all of us, brothers and sisters, children, all of us can know the Father. और हम सब भाई बहन बच्चे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। Okay. Now we'll read 1 John 1:3. अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 3 वचन। I'll be reading a few verses
So please also refer to it. I'm trusting that you're referring to it. मैं कुछ वचन पढ़ने वाला हूं, आप भी अपने बाइबल में उन वचनों को पढ़ सकते हो। 1 John 1:3. पहला यूहन्ना 1:3। This is what the Apostle John is writing. ये प्रेरित यूहन्ना लिख रहा है, And he's writing at the age, probably he was around 90 years. और वो इस उम्र में लिखता है जब लगभग वो 90 वर्ष का था। He's saying, what we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you may have fellowship with us. वो And then he says, and indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. और वो कहता है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। See what he's saying? वो क्या कह रहा है? And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. वो कह रहा है कि हमारी संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। This is what the Apostle John, a close disciple of Jesus, is saying, that he has fellowship with the Father and with the Son, Jesus Christ. और यही प्रेरित यूहन्ना कहता है कि मेरी संगति पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु के साथ है। And we'll read one more verse in 2 Corinthians chapter 13, एक और वचन हम देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय verse 14. उसका 14 वचन। The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। So here he's talking about a fellowship with the Holy Spirit also. यहाँ वो पवित्र आत्मा की संगति या सहभागिता की भी बात करता है। So fellowship with the Father, fellowship with the Son, fellowship with the Holy Spirit. पिता के साथ संगति, पुत्र के साथ संगति, पवित्र आत्मा के साथ संगति। Brothers and sisters, this is the most wonderful thing in the Christian life. और भाई और बहनों, मसीह जीवन की ये सबसे अद्भुत चीज है। This is the one which Jesus loved and lived for. ये वो था जिससे परमेश्वर यीशु ने प्रेम किया और उसी के लिए उसने जीवन जिया। Okay, and this is the one we will enjoy the most. और ये संगति है जिसका आनंद सबसे ज्यादा हम उठा सकते हैं। Okay, because Jesus enjoyed it most. क्योंकि यीशु ने उसका आनंद सबसे ज्यादा लिया। He didn't want to have a break of fellowship for 1 second. वो नहीं चाहता था कि एक सेकंड के लिए भी उसके संगति में कोई वो टूट जाए। But because of his love for us, for 3 hours, he allowed that fellowship to be broken. पर क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, 3 घंटों तक पिता के साथ उसकी संगति टूट गई। So the Father was grieved, और पिता को दुख हुआ, and Jesus was grieved. और यीशु को दुख हुआ। Okay, so this is, brothers and sisters, when we really know the value of the fellowship with God, और भाई और बहनों, जब हम वाकई मसीह के साथ या परमेश्वर के साथ के संगति के मूल्य को जानेंगे, then we will not want to sin. Then we will not want to sin. फिर हम पाप नहीं करना चाहेंगे। Okay, that is the benefit of this. ये इस संगति का एक फायदा है। Okay, so we'll read 1 Corinthians 1:9. हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वां वचन। 1 Corinthians 1:9. पहला कुरिन्थियों 1:9। God is faithful, through whom you were called into fellowship with His Son Jesus Christ our Lord. और परमेश्वर सच्चा है, इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। Another verse which is saying we are called for the fellowship with Jesus Christ. यहाँ एक और वचन है जो कहता है हमारी बुलाहट ही ये है कि मसीह के साथ हमारी संगति हो। John 17:3 यूहन्ना उसका 17 अध्याय 3 वचन says, वहाँ लिखा है, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. यूहन्ना 17 अध्याय 3 वचन, अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। So we all have received eternal life when we accept Jesus Christ. हम सब ने अनंत जीवन पाया है जब हमने मसीह यीशु को स्वीकारा। So the eternal life is not a life that we don't say that eternal life is just a life which is never ending. अब अनंत जीवन ये नहीं कि हम केवल ये कहते हैं कि हाँ अनंत जीवन मतलब जो कभी नहीं खत्म होगा, But it is knowing God. पर वो ये है कि हम परमेश्वर को जाने। Eternal life is knowing the only true God and Jesus Christ. अनंत जीवन ये है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। So brothers and sisters, this fellowship with God we must all partake and enjoy. और भाई और बहनों, परमेश्वर के साथ की ये जो संगति है, हम सबको इस संगति में शामिल होना है और इसका आनंद लेना है। We can enjoy because God is our Father. हम इस संगति का आनंद इसलिए उठा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। But if we think that God is
strict teacher or a policeman, we will not enjoy. पर अगर हम ये सोचेंगे कि परमेश्वर तो बहुत कठोर कोई शिक्षक है, कोई पुलिस वाला है, फिर हम इस संगति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। If we feel that God is waiting to find out some fault in us, अगर हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर इंतजार कर रहा है कब इसमें कोई गलती ढूंढूं, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो that is not a living God. ये जीवित परमेश्वर नहीं है। He's not that. He's a loving Father. वो एक प्रेमी पिता है And Jesus has only come to save us. और यीशु तो केवल हमारा उद्धार करने आया है। Today you may be struggling. आज शायद हम संघर्ष कर रहे हैं, He will not give up on you. पर वो हम पर हार नहीं मानेगा। He is a high priest who can sympathize with our weaknesses. वो एक ऐसा महायाजक है जो हमारे निर्बलताओं से सहानुभूति रखता है। And the Holy Spirit is a comforter and a helper. और पवित्र आत्मा हमारा सांत्वन देने वाला, हमारा सहायक है। So we are called to have fellowship with the loving Father, और हमारी बुलाहट है कि उस प्रेमी पिता के साथ हमारी संगति हो, a merciful high priest, उस दया करने वाले याजक, महायाजक के साथ, and the comforter, the Holy Spirit. और सांत्वन देने वाला पवित्र आत्मा। Will that be good fellowship? क्या ये अच्छी संगति होगी क्या? Yes or no? हाँ या नहीं? Will it be an enjoyable fellowship? क्या ये एक आनंद भरी संगति होगी क्या? Brothers and sisters, we will desire, when we know this, we will always desire to have fellowship with God. भाई और बहनों, जब हम इस सत्य को जान जाएंगे, हम हमेशा एक लालसा रखेंगे, इच्छा रखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारी और संगति हो। Okay, now we'll read one important verse. अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण वचन पढ़ेंगे, 1 John 1:5. पहला यूहन्ना 1:5। This is the message we have heard from him and announced to you, that God is light and in him there is no darkness at all. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। So this is what the apostle John is writing about God, और प्रेरित जो यूहन्ना है वो परमेश्वर के बारे में ये लिखता है that God is light and in him there is no darkness. कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। God is light means he is pure, there is nothing, not even a spot of wrong things in him. परमेश्वर ज्योति है मतलब परमेश्वर शुद्ध है, उसमें तिनका भर भी कोई गलत काम नहीं है, छोटा सा भी कोई गलत काम नहीं है। His actions are pure, his intentions are pure, everything about his motives are pure. परमेश्वर के कार्य शुद्ध है, उसके मकसद शुद्ध है, उसके उद्देश्य, उसके इरादे शुद्ध है, And in him there is no darkness, और उसमें कोई अंधकार नहीं है, nothing wrong. कुछ गलत नहीं। Okay, so this is the God that we are serving, अब ये परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, and we are going to have fellowship with this God और हमारी संगति इस परमेश्वर के साथ होने वाली है who is light. जो ज्योति है। So we, brothers and sisters, have been taken from the kingdom of darkness into the kingdom of light. और भाई और बहनों, हम जो है हमें अंधकार के राज्य से निकालकर ज्योति के राज्य में लाया गया है। The devil represents darkness. शैतान जो है वो अंधकार का प्रतिनिधित्व करता We है। were under his rule when we were unbelievers. जब हम अविश्वासी थे तो हम शैतान के अधिकार के अधीन थे, So when we had sin and we were living in sin, we were in darkness. और जब हम पाप करते थे, जब हम पाप में जीते थे तो हम अंधकार में जी रहे थे, So we cannot have fellowship with God और इसलिए परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं हो because सकती God थी, is light. क्योंकि परमेश्वर तो ज्योति है। Light and darkness cannot have fellowship. ज्योति और अंधकार में कोई संगति हो ही नहीं सकती, But God has made us light. पर परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया He है, has forgiven our sins उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, and He has made us a child of light. और उसने हमें ज्योति का संतान बनाया है। It's a precious thing, brothers and sisters. You are all children of light. और ये एक बहुमूल्य बात है मेरे भाई और बहनों, आप सब ज्योति की संतान हो। It's an amazing thing that we have been made children of light. ये एक अद्भुत चीज है, हमें ज्योति के संतान बनाया गया है। And because of that, we can have fellowship with God. इसी की वजह से परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो सकती है। Okay. Now we'll read 1 John 1:6 and 7. अब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन। Here we see the reality. यहाँ हम उस वास्तविकता को देखते हैं। Okay. If we say we have fellowship with Him, that is God, and yet walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as He Himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So,
There are how many children are there amongst us? Can you raise your hand? और हमारे बीच में कितने बच्चे हैं? क्या आप अपने हाथ को बड़ा उठा सकते हो? Okay. So what I'm speaking, are you able to understand? और जो भी मैं कह रहा हूं क्या आप समझ पा रहे हो? Okay. Okay. Now please listen to this, because this is important for you, because you are very young. This is important for you because you are very young. अब कृपया ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सब बहुत जवान हो। For the children and for the youth, this is very, very important. बच्चों के लिए, जवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। For all the adults also it's important. और हम सब जो बड़े हैं हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। Okay. If we say suppose we say we have fellowship with God, अगर हम कहते हैं कि हमारी परमेश्वर के साथ संगति है and yet walk in darkness, और उसके बाद हम अंधकार में चले तो we lie and do not practice the truth. फिर हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। So if we say yes, I have fellowship with God, और अगर हम कहेंगे कि हाँ मेरी तो परमेश्वर के साथ संगति है, and then I have some hatred towards somebody, और फिर मेरे हृदय में, मेरे मन में किसी के प्रति कोई घृणा है, maybe to my wife or to my husband, शायद मेरे पत्नी के खिलाफ, मेरे पति के खिलाफ, maybe to some brother or sister in the church, या कलीसिया के किसी भाई बहन के खिलाफ, maybe to some neighbor, या मेरे किसी पड़ोसी के खिलाफ, I'm not forgiving them, I'm having bitter thoughts, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर रहा, कड़वाहट भरी विचार मेरे मन में उनके प्रति है, or I'm jealous of somebody, या मुझे किसी के प्रति जलन है तो, and then I say I have fellowship with God. और फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं परमेश्वर के साथ मेरी संगति है। It is like the word of God says no, you are lying and there is no truth in you, परमेश्वर का वचन कह रहा है आप झूठे हो, आप में कोई सत्य नहीं है। because we'll see that verse in 1 John chapter 2. हम इस वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, verse 11. उसका 11वां वचन। 1 John 2:11 says, but पहला the यूहन्ना one 2:11, but the one who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. पहला यूहन्ना 2:11, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है या घृणा करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। So brothers and sisters, very serious. The fellowship with God is so wonderful and interesting. और भाई और बहनों ये बहुत गंभीर है क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति इतनी अद्भुत है, इतनी दिलचस्प है। But if there is darkness in our life, we will not have fellowship. पर अगर हमारे जीवन में अंधकार है फिर हमारी कोई संगति नहीं होगी। See, for religion, you don't need to be in the light. देखिए धर्म रखने के लिए आपको ज्योति में होने की कोई जरूरत नहीं, There are idols whom people go and worship. क्योंकि ऐसी जो मूर्तियां होती है जिनकी जाकर लोग आराधना करते हैं, They can have jealousy, they can have hatred, they can have all the things. उन मूर्तियों की आराधना करने वालों के मन में जलन हो, घृणा हो, बुराई हो, जो कुछ हो चलेगा। Before the idol, they can say some bad words and there will be no problem. वो मूर्तियों के सामने अगर जाकर गालियां भी दे कोई बात नहीं, चल जाएगा। They will worship. पर उसके बाद वे मूर्तियों की आराधना करते हैं। But not the living God. पर जीवित परमेश्वर के साथ ये बात नहीं है। He is holy and pure. वो पवित्र है, वो शुद्ध है। And when we want to have fellowship with Him, और जब हम उसके साथ संगति करना चाहे we have to walk in the light. फिर हमें ज्योति में चलना होगा। Okay? And to walk in the light is a wonderful thing. और ज्योति में चलना एक अद्भुत चीज है। Okay? So now we'll read Amos chapter 3 verse 3. अब हम देखेंगे आमोस की पत्री, आमोस का पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 वचन। Do two men walk together unless they have made an appointment? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? If two men are, walking together for a long time and they are wanting to spend time together, unless they have made an agreement, they cannot do that. अगर दो लोग सहमत नहीं है तो ना ही वो एक साथ चल सकेंगे, ना ही वो लंबा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। So unless they are in agreement to each other, they cannot walk together. और जब तक एक दूसरे के साथ वे सहमत नहीं है वे चल नहीं पाएंगे एक साथ। Similarly, when we want to have fellowship with God, we must have an agreement. बिल्कुल वैसे ही अगर परमेश्वर के साथ हम संगति चाहते हैं तो हमारे उसके साथ एक सहमति होनी चाहिए। That means whatever God wants, I'm in agreement with Him. इसका मतलब परमेश्वर जो कुछ चाहता है मैं उससे सहमत हूँ। God is the one who will help us to do whatever He wants us to do. परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करेगा जो भी वो चाहता है वो करने में। So that is an important thing when we think of fellowship with God, brothers and sisters. और We have to walk in the light. और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम परमेश्वर के साथ संगति चाहते हैं भाई और बहनों तो हमें ज्योति में चलना होगा। So I was saying that we
maybe at home we may speak angrily to our wife or husband, और जैसे मैं कह रहा था, शायद घर पर हम अपने पति से पत्नी से गुस्से से बात करें, maybe to anybody we may do something wrong, या किसी से भी शायद हम कुछ गलत कहेंगे, we may fall into sin. हम पाप में गिरेंगे. As Christians, as children of disciples of Christ, we are not to live in sin, but we may fall into sin. मसीह होने के नाते हम जो यीशु के शिष्य हैं, हम पाप में गिर सकते हैं, पर हमें पाप में जीवन नहीं जीना है. That is important. ये महत्वपूर्ण है. We may fall into sin. हम शायद पाप में गिर जाएंगे. It is like when we are walking on the road and one stone is there and we trip down. ये बिल्कुल वैसा है, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई पत्थर से हम ठोकर खा के गिर जाते हैं. We are not intentionally fallen, but we tripped. हम जानबूझकर नहीं गिर रहे, हम ठोकर खा के फिसल कर गिर गए हैं. That's the way the Christian life is. मसीह जीवन बिल्कुल ऐसा है. Should be. होना तो ऐसा चाहिए. But our experience may be we are falling up and down, getting up and down. It may be so. पर हो सकता है कि हमारा अनुभव ऐसा है कि हम पाप में गिरते हैं, उठते हैं, गिर रहे, उठ रहे, गिर रहे, उठ रहे. Don't be discouraged. निराश ना होना. As children, when they are small children, 1 year and all, they go fall, they get up, fall, get up. That is a process. जब बच्चे छोटे होते हैं, यही प्रक्रिया है. गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, चलते, गिरते हैं, चलते, ये प्रक्रिया है. But as they walk, as they go more, they start walking and they start running. पर जैसे जैसे धीरे धीरे वे बड़े होते जाते, वे ना ही चलने लगते, वो तो दौड़ने भी लगते हैं. So that should be our desire too. और ये हमारी भी इच्छा होनी चाहिए. As we grow in the Christian life, it is not always falling and getting up, falling and getting up. जब हम मसीह जीवन में बढ़ रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गिरते फिर उठते, गिरते उठते, ऐसा नहीं होना चाहिए. Okay, today if our experience is falling and getting up even after some years, ठीक है, अगर आज हमारा अनुभव ऐसा है कि हम गिर रहे, उठ रहे, और मसीही जीवन के कुछ सालों बाद भी हमारा यह अनुभव है, तो still don't be discouraged. फिर भी निराश नहीं होना. Ask God. God is going to give us grace to be overcomers. परमेश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जयवंत होने के लिए अनुग्रह देगा. See, the Bible has called us to be overcomers. बाइबल ने हमें बुलाया है कि हम जयवंत बने. That means God is going to make us overcome any particular sin. इसका मतलब परमेश्वर हमें किसी भी विशेष पाप पर जयवंत बनाएगा. Suppose we have got a habit of speaking ill about people, अगर हमारे अंदर एक आदत है कि लोगों की हम बुराई करते हैं, then we must be an overcomer. फिर हमें जयवंत होना है. That God should give us grace to stop talking evil of others. परमेश्वर ने हमें अनुग्रह देना है कि हम दूसरों की बुराई करना बंद कर दे, उनके पीठ वो बात करना बंद कर दे. Because it will do us only good. क्योंकि जब हम ये छोड़ देंगे तो इससे हमारी भलाई होगी. The mouth is a source of so much sorrow in our life. और हमारा जो मुंह है, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा दुख का कारण हमारा मुंह ही है. As long as it remains in our mind is okay, but when it comes out, it causes problem for us and for others. जब तक ये चीजें हमारे मन में बनी रहती है, तब तक ठीक है, पर जैसे ही मुंह से बाहर निकलती है, हमारे लिए समस्या उत्पन्न होगी, दूसरों के लिए समस्या उत्पन्न होगी. So what to do? फिर क्या करना है? We can be overcomers. हम जयवंत हो सकते हैं. The Bible says sin shall not have dominion over us. बाइबल बताती है कि पाप तुम पर प्रभुता न करेगा. Our church speaks so much about it. हमारे कलीसिया में इस पर इतना प्रचार होता है. Romans 6:14. रोमियो 6:14. But we must believe. We say, Lord, I want that. पर हमें विश्वास करना है, हमें कहना है कि प्रभु मैं ये चाहता हूं. And for all those who want it, God makes us overcomers. और जितने लोग इसकी चाहत रखते हैं, परमेश्वर हमें जयवंत बनाएगा. Do you desire to be an overcomer? क्या आप चाहत रखते हो क्या कि आप जयवंत बनो? God desires us to be overcomers, so He will help us. परमेश्वर की चाहत है कि हम जयवंत बने, इसलिए वो हमारी सहायता करेगा. So brothers and sisters, when we fall into sin, then we have gone into darkness. और भाई और बहनों, जब हम पाप में गिरते हैं तो हम अंधकार में जा चुके हैं. So sin, sometimes we think sin is some bad action. You hurt somebody by hitting him or say some words. We may think that action and words are the sins. अब कई बार होता क्या है, हमें लगता है कि पाप मतलब कोई बुरा कार्य है. अगर मैं किसी को अपने हाथ से मारूं या मैं कुछ गलत कहूं, हमको लगता है कि पाप मतलब मेरे कार्य और मेरे शब्द. But it doesn't stop there. पर ये केवल यही नहीं रुकता. We can sin so many times in our thoughts. हम कई बार अपने विचारों में पाप कर सकते हैं. Okay, suppose I think something bad about brother Michel. और अगर मैं भाई के बारे में कुछ गलत सोचूं तो Why Michel is like this? He's not such a good person. Suppose I start thinking like that. अगर मैं सोचने लगूं ये ऐसा क्यों है, ये भाई ये अगर ऐसा होता तो बेहतर है, अगर मैं ऐसा सब सोचने लगूं तो Is that a sin or it's okay? ये पाप है या ये ठीक है? It's all right. It's all right for us to just think about one person, 2%. So many people, we think so many things in a wrong way. Is it all right?
क्या हमारे लिए ठीक है क्या? एक व्यक्ति के बारे में गलत सोचो, दूसरे के बारे में, कई लोगों के बारे में गलत सोचो, और ये सब ठीक है क्या? And then we go to God in prayer और फिर हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने जा रहे हैं, and we want to spend time, quiet time with Him. और फिर हम परमेश्वर के साथ एक नजदीकी का समय बिताना चाह रहे हैं। Can we have fellowship? क्या हम संगति कर पाएंगे क्या? We may be spending that 1 hour there, but no fellowship really. शायद 1 घंटा हम वहां बिता रहे हैं, पर परमेश्वर के साथ कोई संगति नहीं है। We have to walk in the light. हमें ज्योति में चलना है। When we have some bad thoughts about somebody, जब किसी के भी बारे में हमारे कोई बुरे विचार हो तो the Holy Spirit in us is waiting to alert us. पवित्र आत्मा हमारे अंदर इंतजार कर रहा है कि वो हमें सावधान करे। You should not think like that. ऐसा नहीं सोचना। Immediately ask God to forgive us. तुरंत परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। How many of us know 1 John 1:9? हम में से कितने लोग पहला यूहन्ना 1:9 जानते हैं? All of us should know that. हम सबको ये वचन जानना है। We'll read that 1 John 1:9. आइए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 1:9। We should know it by heart. हमें ये वचन याद हो जाना चाहिए। If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us of all unrighteousness. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। Brothers and sisters, Jesus died for so much of our sins. और भाई और बहनों, यीशु मसीह हमारे पापों के इतने पापों के लिए मरा, Our past sins and our future sins too. हमारे अतीत के पाप, हमारे भविष्य के पापों के लिए वो मरा। That is because of His love for us. वो क्यों? हमारे लिए जो उसका प्रेम था उस वजह से। So to come back in the light, we must confess our sin और अगर हम वापस ज्योति में आना चाहते हैं तो हमें अपने पापों का अंगीकार करना होगा and say that we don't want to do it again. और हमें कहना होगा कि मैं ये वापस नहीं दोहराना चाहता। Ask His forgiveness हमें प्रभु से माफी मांगनी है and ask the blood to cleanse us. और हमें प्रभु का लहू मांगना है कि वो हमें शुद्ध करे। Then we are in the light फिर हम ज्योति में आ जाते हैं and we have fellowship with God. और हमारी परमेश्वर के साथ संगति हो जाती है। So brothers and sisters, that in the day, suppose we just suddenly think of some thing or we talk, we must immediately come to the light. और भाई और बहनों, अगर किस दिन में किसी भी समय हम कुछ गलत सोचते हैं, कुछ गलत करते हैं, तुरंत हमें ज्योति में लौट आना है। Now I want to show you one verse which challenges me, मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ जो मुझे चुनौती देता है। by which I want to live my life, इस वचन के अनुसार मैं अपना जीवन जीना चाहता हूँ and I want to challenge all of you about this too. और मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी इसके द्वारा चुनौती मिले। It's the life of the Apostle Paul. ये प्रेरित पौलुस का जीवन है। 1 Corinthians 4:4. पहला कुरिन्थियों 4:4। 1 Corinthians 4:4. पहला कुरिन्थियों 4:4। For I am conscious of nothing against myself, yet I am not by this acquitted, but the one who examines me is the Lord. क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहरा था, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। The Apostle Paul was saying, I am conscious of nothing against myself. प्रेरित पौलुस कहता है, मेरे खिलाफ मुझे कोई दोष का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। That means he was always walking in the light. Not that he did not fall. इसका मतलब पौलुस निरंतर ज्योति में चल रहा था। अब इसका यह मतलब नहीं कि पौलुस कभी गिरा नहीं, But when he fell, he got right with God. पर जैसे ही पौलुस गिरता वो परमेश्वर के साथ सही हो जाता। He was cleansed by the blood of Christ. वो मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया जाता। And so he's saying, at this moment, I am conscious of nothing against myself. और इसलिए वो कहता है, इस समय मेरा मन मुझे किसी भी बात में दोषी नहीं ठहराता। Brothers and sisters, that is the life that I want to live, and I pray that all of us want to live. Is every moment when we look at us, I'm conscious of nothing against myself. और भाई और बहनों, ये जीवन मैं जीना चाहता हूँ और मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक व्यक्ति ये जीवन जिए। हमारे जीवन के हर एक क्षण हमारा मन हमें किसी भी बात के बारे में दोषी ना ठहराए। That means when I look to God, there is nothing which is between me and God. इसका मतलब जब भी मैं परमेश्वर को देखूं, परमेश्वर और मेरे बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। I'm not aware of any wrong thing between me and God. मुझ में और परमेश्वर के बीच किसी भी गलत बात का मुझे कोई एहसास नहीं है। Is that a good life? क्या ये अच्छा जीवन है क्या? Yes or no? हाँ या नहीं? It's a wonderful life. ये एक अद्भुत जीवन है। But he says, yet I am not by this acquitted. पर फिर पौलुस आगे क्या कहता है? परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं He ठहरता। said, not that I am perfect. मतलब वो कह रहा है, देखो मैं सिद्ध नहीं हूँ। Maybe others may see some fault in me, और वो कह रहा है शायद दूसरे लोग मेरे अंदर कोई गलती but देखते I हैं, am not aware. पर मुझे अब तक उसका एहसास नहीं हुआ। God only judges us by what we know about ourselves. परमेश्वर हमारा न्याय केवल इसी से करते हैं कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं। That's why many times we try to judge others by our standard, whereas they may be innocent.
और इसलिए कई बार होता क्या है, हम दूसरों का न्याय अपने मापदंड से करते हैं, पर हो सकता है सामने वाला व्यक्ति मासूम हो, because they are not aware. क्योंकि उनको इसका एहसास, उनको इस बारे में नहीं पता। Okay? And he says, the one who examines me is the Lord. और फिर वो कहता है मेरा परखने वाला प्रभु है। So we are all called to allow God to examine us. और हम सब की बुलाहट ये है कि हम प्रभु को अनुमति दे कि वो हमें परखे, हमें जांचे। Okay, there is a wonderful verse about God examining us. अब परमेश्वर हमें परखना, इसके बारे में एक अद्भुत वचन है। Psalm 139, भजन संहिता 139 23 and 24. उसका 23 और 24। This is a wonderful prayer by David. ये दाऊद के द्वारा एक अद्भुत प्रार्थना है। It's David, no? Psalm 139. Yeah. So this is a prayer that we can pray. ये एक ऐसी प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं। It says, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts, and see if there is any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. वहां लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। So we have to just go when we kneel down to pray, we can say, Lord, search me, you search me. और जब भी हम प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं, हमको कहना है प्रभु तू मुझे जांच। See, we don't need to search ourselves, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत but नहीं we है, can ask God to search. पर हम प्रभु से कह सकते हैं प्रभु तू मेरे हृदय को जांच ले। Search me, Lord, and know my heart. और हम कह सकते हैं प्रभु मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, Know everything from my heart. जो कुछ मेरे हृदय में उसे तू जान ले प्रभु। Even the hidden things, you know it. जो छिपी हुई चीजें वो भी तू जानता है प्रभु। And see if there is something which is hurting you. और फिर प्रभु देख ऐसी कोई भी चीज है क्या जो तुझे कष्ट देती हो, तुझे दुख देती हो। And when we pray like that, God's answer is like the quickness of a speed of light. और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का जो उत्तर है वो ज्योति के जो गति है, लाइट की जो गति है, उस गति से हमें वो उत्तर मिलेगा। He will tell the particular thing which is wrong. परमेश्वर हमें वो विशेष चीज बताएगा जो गलत है। And then we have to confess it, set it right. फिर हमें उसका अंगीकार करना है, उस चीज को सही करना है। Again, we'll no need of reading it. Psalm 26:2, David says, "Examine me, O Lord, try me, O Lord." एक और वचन है, हम बाद में पढ़ सकते हैं, भजन संहिता उसका 26:2, जहां दाऊद कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख। So, brothers and sisters, when we go to and spend time with God, और भाई और बहनों, जब भी हम जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, we must know that we have entered the most holy place. हमें जानना है कि हम परम पवित्र स्थान में हमने प्रवेश कर लिया है। That is, before God is the most holy place. और परमेश्वर के सामने परम पवित्र स्थान है। Jesus made this way for us to go direct to God. यीशु ने हमारे लिए ये मार्ग बनाया है कि हम सीधे तौर पर परमेश्वर के पास जा In the सके। Old Testament, the high priest could go once only a year into the most holy place. पुराने नियम में जो महायाजक होता था वो परम पवित्र स्थान में केवल एक बार जा सकता था। Anybody else who would go there would be dead. अगर दूसरा कोई भी व्यक्ति उस परम पवित्र स्थान में जाए उसको मार दिया जाता था। But Jesus has gone this way and taken us right and opened the way to the most holy place for all of us. पर यीशु मसीह ने ये मार्ग लिया और अंदर जाकर हम सब के लिए उसने एक मार्ग खोला कि हम परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाए। So remember, when you go next time before the throne of grace, that is before God in prayer, और याद रखें कि जब भी आप अनुग्रह सिंहासन के सामने जाते हो, मतलब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए जाते हो, whether you are standing, whether you are kneeling, whatever it is, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप घुटने टेक रहे हो, जो कुछ भी हो, when we are talking to God, जब हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, we are in the most holy place. हम परम पवित्र स्थान में हैं। We are before God who is light. हम परमेश्वर के सामने जो ज्योति है, In him there is no darkness. उसमें कोई अंधकार नहीं, And that light is so powerful that it can scan us completely. और वो ज्योति इतने सामर्थ्य से भरी है कि वो हमारा अच्छे से सिद्ध तौर पर स्कैन कर सकती है। Every thought, every intention, every motive is known before him. हर विचार, हर उद्देश्य, हर मकसद या इरादा परमेश्वर को पता है। And brothers and sisters, that is the most wonderful thing that can happen to us. और भाई और बहनों, क्या आप जानते हो, ये सबसे अच्छी चीज है जो हमारे जीवन में हो सकती है, That we are before the living God and he knows everything about us. कि हम जीवते परमेश्वर के सामने और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता हो। So when we live like this and we are happy to go before God, then we get tremendous boldness in our life. जब हम ऐसे जीते हैं और परमेश्वर के सामने जाने के लिए हम खुश हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने बहुत ज्यादा हियाव प्राप्त होता है, Because we have stood before the living God. क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हुए हैं। So to stand before men, there's no problem. और
एक बार हम जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, मनुष्यों के सामने खड़े होने में कोई समस्या नहीं। we're not bothered if men find anything wrong in us. फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लोगों को हमारे अंदर कुछ गलत दिखे तो। Of course, when they say something wrong and if there is something wrong, I need to correct it. ये बिल्कुल सही है, अगर लोग मेरे बारे में कहे कि देखो आपके अंदर ये गलती है और अगर वो गलत हो तो मुझे अपने आप को सुधारना है। But I am not afraid if somebody finds some fault of mine. पर मुझे डर नहीं लगेगा कि कोई और मेरी गलती ढूंढ लेगा क्या। Because I've stood before the living God. क्यों? क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ हूँ। So that's a wonderful thing, brothers and sisters. ये एक अद्भुत चीज है मेरे भाई और बहनों। So there's one verse, 1 John 2:28. एक वचन है पहला यूहन्ना 2:28। 1 John 2:28. पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 28 वचन। Now little children, abide in him, so that when he appears, we may have confidence and not shrink away from him in shame at his coming. अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। So brothers and sisters, before this holy and living God, we can have confidence. और भाई और बहनों, इस पवित्र और जीवते परमेश्वर के सामने हमारे पास हियाव हो सकता है। How children come before their parents confidently, we can go confidently before the living God. बच्चे कैसे अपने माता पिता के पास बड़े हियाव से आते हैं, हम भी अपने परमेश्वर के सामने हियाव से जा सकते हैं। How Mahima will go confidently to brother Vijay and sister Jyoti. और महिमा कैसे भाई विजय और बहन ज्योति के पास कैसे बड़े हियाव से जाएगी। Just an example of ये एक to the उदाहरण child. है। That way we can go close, we can go confidently before God. उतने ही हियाव के साथ हम परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। That is a Christian life. ये मसीह जीवन है। May God help each परमेश्वर one of us. हमारी सहायता करे। May God help us to love the fellowship with God. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि परमेश्वर के साथ के संगति से हम प्रेम रखें।